Hello dear children. So now today we will start part second of our chapter seeds and seeds. In the previous video we saw that how the seed is being kept inside this pot, and then the things which are needed for its germination like water, sunlight. Okay, with the help of these three things, soil, water and sunlight, this seed grows into a plant. Okay, so we have done one experiment related to the sprouting of seeds also. So we will go ahead and see. Do this and find out. Do you remember that in class 4th you did an activity with seeds? Now try another one. आपने class 4th में एक activity की है, अब आपको एक नई activity करनी है. Take some chana and 3 bowls. Okay, आपको एक चना लेना है और 3 bowls लेने हैं, चने लेने हैं और 3 bowls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. 5 चने आपको पहले बाउल में रखने हैं and then you have to fill it with water, full covered. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. In the first bowl, you have kept the seeds and filled it with water. In the second, you have taken a piece of cloth. You can take a piece of cloth or a cotton wool, and it should be damp, means it should be wet. And now keep the same number of chanas on in it. और फिर आपने उनमें भी सेम नंबर ऑफ चना दिया. आपने इसमें क्या किया, आपने इसके कपड़े को या कॉटन वुल को क्या करके रखा, गीला करके रखा. Make sure that the cotton wool or cloth remain wet, and you have to assure that it should remain wet. Means the amount of water should be as such that it will remain wet till the sprouts come. Or if suppose it's not like that, you have to sprinkle water. मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पानी उतना होना चाहिए, गीला उतना हमेशा गीला बना रहना चाहिए जब तक कि ये चनों में से स्प्राउट ना निकल आए. और अगर आपको ऐसा लगता है पानी कम है तो you only have to sprinkle the water. Put the same number of chana in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. This experiment I told. So in this what we have to do, suppose these are the 3 bowls. In the first bowl, you have kept the chana. In the second, the damp with the damp cotton, and in the this one it is empty. Means here the water is there, here the damp cotton is kept, and here no water is kept. Okay. Now, what are the changes that you have to observe? Are the seeds getting air? In the bowl 1, as it is having the water, it is not getting the air. In the bowl 2, it is opened and kept on the damp cotton, so it is getting air. मतलब पहले में तो हवा नहीं है, दूसरे में है. In the third also, it is having the air. Now, are the seeds getting water? अब इन तीनों में आपको पता करना है किस किस में पानी मिल रहा है. तो इस फर्स्ट वाले में भी मिल रहा है, सेकंड वाले में मिल रहा है, थर्ड वाले में नहीं मिल रहा है. What changes did you see? Have the seeds sprouted? Okay, so I told you before that you have to do this experiment. So now we will see the result. What will happen? Okay, are the seeds getting air? So in the first bowl, no. Yes, that we have discussed. Are the seeds getting water? So yes. In the first and second bowl, they are getting the water, and the third, no water is there. What changes did you see? अब आपने क्या changes देखा? पहले में जिसमें पूरा पानी ऊपर तक भरा था, चनास हैव स्वेल्ड अप, मतलब चने जो है उनका साइज बढ़ गया, वो स्वेल्ड हो गए. सेकंड में भी चनास हैव स्वेल्ड अप, सेकंड में भी स्वेल्ड अप हो गए, और थर्ड में भी चना हैव स्वेल्ड अप. ठीक है. हैव द सीड्स स्प्राउटेड. अब आपको देखना है क्या सीड स्प्राउट हुए. तो पहले वाले में भी नहीं हुए, सेकंड वाले में भी नहीं हुए. कहां पर स्प्राउट हुए? ओनली इन द सेकंड कंडीशन. ओके. सो व्हाट आर स्प्राउट्स? तो क्या कंडीशन चाहिए होती है? वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और हीट चाहिए होता है. तो ये तीनों चीजें जो है वो चाहिए होती है किसके लिए? फॉर द स्प्राउटिंग ऑफ seed. Okay. Now here are some question answers related to it. Tell and write. In which bowl did the seeds sprout? कौन से बाउल में seeds का अंकुरण हुआ? What difference did you see between this bowl and the other bowl? आपने क्या difference देखा इस बाउल में और दूसरे बाउल में? The seeds sprouted in the second bowl. Second bowl जिसमें damp cotton रखी थी उसमें sprout हुआ. In this bowl, seeds could get sufficient quantity of both moisture and air. और इस बाउल में जो सीड था उसको सफिशिएंट क्वांटिटी मिल रही थी किसकी? मॉइस्चर की और एयर की. मॉइस्चर मतलब पानी की क्वांटिटी और एयर की क्वांटिटी, विच आर नेसेसरी फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स, जो स्प्राउटिंग के लिए बहुत जरूरी है. वेयर इज द बाउल 1 हैड वाटर इन एक्सेस क्वांटिटी. और बाउल 1 में क्या था? पानी था लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में था, बट नॉट एयर, कोई एयर नहीं थी. और थर्ड वाले बाउल में केवल एयर थी और पानी नहीं था, इसलिए थर्ड वाले बाउल में भी थोड़ा सा मतलब साइज में थोड़ा सा अंतर आएगा.
Why did Gopal's mother tie the chana in the damp cloth? तो गोपाल की मदर ने क्यों चने को damp cloth में बांधा? Gopal mother tied the chana in the damp cloth to ensure that the chana seed gets proper moisture along with the air. ताकि चना जो है उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिले एयर के साथ साथ, मतलब मॉइस्चर तो आपने गीला कपड़ा लिया और उसको डैम्प क्लोथ में रखा ताकि उसको एयर भी मिल सके. लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट ड्राई. अब आपको स्प्राउटेड चना जो आपने बनाया उसकी आपको ड्राइंग बनानी. तो देखिए ये है चना और ये उसका स्प्राउट निकला हुआ. तो हम और एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से और में स्प्राउट्स होते हैं. देखिए ये अलग अलग है, देखिए इनमें अलग अलग में सब में देखिए आप सब में आपको स्प्राउट्स, ये व्हाइट कलर के स्प्राउट्स निकल के आ रहे हैं. ठीक है. और ये देखिए आफ्टर स्प्राउटिंग ये स्प्राउट निकला. अगर इसको हम रख देते हैं प्रॉपर और समय के लिए तो इस तरीके से अभी तो रूट बाहर निकली है, फिर क्या होता है धीरे से शूट भी बाहर निकल आता है. और देखिए ये आपको प्रोसेस दिखा रहा है कि किस तरीके से ये होता है. चलिए नेक्स्ट, germination of seed. We will see after sprouting what will happen. We will see this video. So now in this picture you can see that what is happening. This is seed. Okay, ये seed है wheat का. नीचे देखिए इसके ये रूट निकल रही है, ऊपर शूट. शूट जो है वो सन के डायरेक्शन में सनलाइट की तरफ जाता है. ग्रीन कलर का होता है क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो उसमें क्लोरोफिल होता है और वो पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल वो हेल्प करता है फूड जो प्रोसेस है उनका फूड बनाने का, फोटोसिंथेसिस में. और नीचे जो है वो रूट जाती है. देखिए जब हम स्प्राउट्स देखते हैं तो उसमें जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई पड़ता है वो व्हाइट कलर का पोर्शन जो होता है वो रूट होता है और उसके बाद वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर you get me मसूर दाल. But when you cannot sprout, but then you cannot sprout me. Can you think why? अब ये जो है ये मसूर दाल बोल रही है कि when you split, आप जब मसूर दाल, होल मसूर दाल को आप स्प्लिट करेंगे, ये जो है वो क्या है, होल मसूर दाल है. और अगर आप होल मसूर दाल को स्प्लिट करते हैं तो अगर आप इसको करेंगे तो ये जो है इसमें स्प्राउट्स आएंगे, लेकिन इसमें स्प्राउट्स नहीं आएंगे. चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं स्प्लिट दाल का. जैसे मूंग है, होल मूंग, और ये इसकी स्प्लिट, ये विथ कवर है और ये विदाउट कवर है. ऐसे ये उड़द दाल है, देखिए ये होल है, इसमें स्प्राउट आएंगे, इसमें स्प्राउट होंगे, लेकिन ये स्प्लिट दाल में स्प्राउट नहीं आएंगे. ऐसे ही अब देखिए ये रॉ चना, जो चना आपने फुलाया था ये चना है, ये चना है ऐसे ड्राइड. इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे तो ये चना दाल बन जाएगा. और इसको और भी अलग प्रोसेस है, आप इससे दाल बना सकते हैं और बेसन बना सकते हैं. Now one project is there. Plant your seed. Take a clay pot or a tin can with a wide mouth. Make a small hole at the bottom of the can. आपको एक ऐसा लेना है क्ले पॉट और उसके नीचे आपको, जैसे आप पेड़ लगाते हैं नीचे आपको छेद कर लेने हैं. फिल योर कैन विथ सॉइल. सॉइल से इसको भर लेना है और आपको 5-5 सीड इनके अंदर डालने हैं. अब कौन कौन से डालने हैं आपको सीड्स? जैसे आपने मस्टर्ड डाला, मस्टर्ड मतलब सरसों. फिर आपने फेनुग्रीक, फेनुग्रीक मतलब मेथी. फिर तिल, तिल सेम मतलब तिल. और कोरिएंडर मतलब धनिया. ये सारे सीड्स आपको डालने हैं और फिर आपको इनका जर्मिनेशन. अब आपको क्या करना है, आपको नाम लिखना है सीड का. तो सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया मस्टर्ड सीड पहले, तो आप कौन सी डेट को आपने उसको प्लांट किया. सपोज करिए उसने आपने आज की डेट पे प्लांट किया तो आपने लिख दिया 17/7/2020. अब आपको इनकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. तो कैसे ऑब्जर्वेशन लिखनी है, पहले आप 8th डे, आज से 8th डे में देखेंगे. आप यहाँ डेट लिखिए, उसकी हाइट कितनी है, नंबर ऑफ लीफ चेंजेस. फिर आप देखिए 10th डे, फिर आप देखिए 12th डे और फिर आप देखिए 14th डे. और आप इस प्रकार से ये सारे चेंजेस जो भी होंगे ये सारे चेंजेस को आपको रिकॉर्ड करके रखना. और उसके बाद आपको ये आंसर फाइंड आउट करने हैं. क्या फाइंड आउट करना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सेल. कितना समय लगा प्लांट को निकलने में. उनकी हाइट में क्या डिफरेंस था फर्स्ट और सेकेंड डे. और हाइट जो है वो कैसे बढ़ रही थी, क्या हर रोज नई पत्तियां आ रही थी, और क्या उसकी स्टेम में कोई चेंजेस हो रहे थे. तो ये सारा आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये मैंने असाइनमेंट में. दिस ऑल यू हैव टू डू. नाउ thank you children. Now stay tuned for the next video. Till then, God bless you all.